بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ارناکوف اور اوازون ایک بیڈ پر گہری نیند میں تھے۔ وردان نے ارناکوف کے دماغ میں یہ بات نقش کی تھی کہ وہ دوسرے دن صبح 10 بجے تک سوتی رہے گی، اس سے پہلے بیدار نہیں ہوگی۔ اوازون کے دماغ میں یہ نقش کیا گیا تھا کہ وہ صبح 6 بجے بیدار ہوگا، پھر اپنا تمام سامان سمیٹ کر ماں کو وہاں چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق صبح 6 بجے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سر گھما کر ماں کو دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ اسے بہت چاہتا تھا، اس پر جھک کر اسے قریب سے دیکھنے لگا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، پھر اس کی پیشانی کو چوم کر آہستگی سے آواز دی، ماما تم تو صبح جاگنے کی عادی ہو، 6 بج چکے ہیں، اب تمہیں اٹھنا چاہیے۔ بیٹے کی آواز ماں کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ وردان کے حکم کے مطابق وہ 10 بجے تک دنیا کی کوئی آواز نہیں سن سکتی تھی اور نہ ہی آنکھیں کھول کر بیٹے کو دیکھ سکتی تھی۔ بیٹا اس کے دماغ میں پہنچ گیا، خیالات پڑنے لگا، پتہ چلا کہ وہ گہری نیند میں ہے اور صبح 10 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگی۔ تب اسے یاد آیا کہ وردان اس کی ماں پر تنویمی عمل کرنے والا تھا، شاید کر چکا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ 10 بجے تک تنویمی نیند سوتی رہے گی۔ اس نے اپنے متعلق سوچا کہ مجھ پر عمل نہیں کیا گیا ہے، اگر عمل کیا جاتا تو میں بھی اپنی ماں کی طرح سوتا رہ جاتا۔ وردان نے اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی تھی کہ وہ پچھلی شام کی باتیں بھول جائے گا کہ چائے پینے کے بعد اعصابی کمزوری میں مبتلا ہوا تھا اور وردان کے زیر اثر آ گیا تھا۔ وہ کبھی شبہ نہیں کرے گا کہ اس پر تنویمی عمل کیا گیا ہے، لہذا وہ وردان کے عمل کے مطابق شبہ نہیں کر رہا تھا، بہت مطمئن تھا کہ وہ اس کے زیر اثر نہیں ہے۔ ماں کو دیکھ کر افسوس کر رہا تھا کہ وہ بیچاری اپنی اور بیٹے کی سلامتی کے لیے وردان کی معمولہ اور تابعدار بن چکی تھی۔ وہ بستر سے اتر کر واش روم میں چلا گیا، پھر وہاں سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا، اپنا سامان اٹیچی میں رکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہاں سے کہاں جائے گا، کہ ایسی شہر میں رہنا چاہیے یا یہاں سے کہیں دور چلا جائے۔ ایک دل نے کہا کہ ماں سے دور نہیں جانا چاہیے، یہاں سے جانے کے بعد بھی دور ہی دور سے ماں کی نگرانی کرنی چاہیے، شاید اسے کسی برے وقت بیٹے کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس نے اٹیچی میں سامان رکھ کر انکار میں سر ہلایا، پھر سوچا کہ نہیں، اب ماں کو میری ضرورت نہیں ہوگی، وہ وردان کے پاس محفوظ رہے گی۔ مسئلہ تو میرا ہے، کیا میں فرہاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے چھپ کر رہ سکوں گا؟ مجھے جلد از جلد ایسی پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے جہاں پہنچ کر یقین ہو کہ وہ دشمن وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ اٹیچی اٹھا کر ماں کے پاس آیا، جھک کر اس کی پیشانی کو چوما اور جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنی اٹیچی اٹھا کر چلتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ وہ کہیں بھٹکنے کے لیے جا رہا تھا اور اس کی ماں بڑے آرام سے گہری نیند سو رہی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مجبور تھے، اپنی اپنی تقدیر کا مالک وردان کو بنا چکے تھے۔ وہ تنویمی عمل کے مطابق ٹھیک 10 بجے بیدار ہو گئی۔ کچھ دیر تک چاروں شانے چت کمرے کی چھت کو تکتی رہی، سوچتی رہی کہ وہ کہاں ہے اور کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اسے ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آتی گئیں، لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ پچھلی شام چائے پینے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ البتہ یاد آیا کہ وہ راضی خوشی وردان کی معمولہ اور تابعدار بننا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ رات گزر چکی ہے، شاید وردان نے اس پر عمل کیا ہے اور اسے اپنی معمولہ بنا چکا ہے۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو بیٹا نہیں تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے یاد تھا کہ سوتے وقت بیٹا اس کے پہلو میں تھا۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا، دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے آواز دی، آوازون کیا تم واش روم میں ہو؟ اسے جواب نہیں ملا۔ وہ خیال خانی کے ذریعے بیٹے کے پاس پہنچ گئی، پھر تعجب سے بولی، یہ تم کس گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہو؟ میں صبح 6 بجے سے بھٹک رہا ہوں، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوں، اب ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے انڈیا میں نہیں رہنا چاہیے، یہاں خطرات زیادہ ہیں۔ ایک تو فرہاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے نہ جانے کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں، دوسری یہ کہ مجھے وردان پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اپنے مطلب کے لیے تمہاری حفاظت تو کرے گا، لیکن مجھے کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا مجھے یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہیے۔ نہیں بیٹے، تم یہاں سے جا کر غلطی کرو گے، وردان کو تمہارے پاس پہنچنا ہوگا تو تم اس کی غیر معمولی صلاحیتوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے، واپس آ جاؤ۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم ماں بیٹے کو ایک ساتھ نہیں رہنا چاہیے، میں آپ سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ چلو مجھ سے دور رہو، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ملک چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ۔ دور ہونا چاہتے ہو تو کسی دوسرے شہر کی طرف چلے جاؤ۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ الجھا ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے۔ ارناکوف نے کہا، بیٹے تم اس ملک میں رہو گے تو کسی بھی برے وقت میں ہم ایک دوسرے کے پاس آ سکتے ہیں، ہمارے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں رہے گا تو ہم کم سے کم وقت میں ایک دوسرے کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اسی ملک میں رہوں گا، فرہاد اور اس کے آدمی اس ملک کے شمالی حصے میں ہیں، میں جنوب کی طرف چلا جاؤں گا۔ ماں کی جان، ہم ایک دوسرے کے قریب رہیں گے، پھر میں خیال خانی کے ذریعے رابطہ کروں گی۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی، پریشانی سے بیٹے کے لیے سوچنے لگی کہ اب پتہ نہیں وہ کہاں کہاں بھٹکتا پھرے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ تنہا رہ گئی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ وردان کب اسے اپنی پناہ میں بلائے گا۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، وردان کے اندر پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ اس نے آواز دی،
स्वामी वरदान के दिमाग से उसकी सोच की लहर उभरी। वो बोल रहा था, अभी यहाँ से जाओ, मैं तमाम रात का जगा हुआ हूँ, नींद पूरी करने के बाद तुमसे बात करूंगा। वो उसकी ताबेदार बन चुकी थी, उससे बहस नहीं कर सकती थी। उसका हुक्म सुनते ही दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। ये समझ में आ गया कि वो उसकी मामूला और ताबेदार बन चुकी है। वो उसके जिस्म जान और दिलो दिमाग का मालिक बन चुका है। वो जब चाहेगा उसे उसके बेटे से हमेशा के लिए दूर कर देगा। अभी ये इत्मीनान था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो फिर बेटे के पास पहुंच गई। इस वक्त वो एक बाजार में था। वो पीतल की थाली, माश की दाल, सरसों का तेल और संदूर वगैरह खरीद रहा था। वो परेशान होकर बोली, ये तुम काले जादू के लिए सामान क्यों खरीद रहे हो? उसने कहा, मामा मैं बहुत परेशान हूँ। आज सुबह ही एक बहुत ही मारूफ नजूमी ने मुझे कहा है कि अल्पा की बेटी अनुषा से बहुत जल्द मेरा सामना होने वाला है। वो हैरानी से बोली, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें किस नजूमी ने ये बात कही है? तुम जिस होटल में हो वो भी इसी होटल में मौजूद है। इसने हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल की बहुत सी सच्ची बातें बताई हैं। लेकिन तुम ये जादू का सामान क्यों खरीद रहे हो? हमने तय किया था कि अब कहीं भी पहुंचकर काले जादू का अमल नहीं करेंगे। फरहाद और इसके टेलीपैथी जानने वाले किसी भी तरह मालूम कर सकते हैं कि इस देश में कहाँ कहाँ काला अमल किया जा रहा है। तुम ऐसा अमल करोगे और आसपास के लोगों को खबर होगी तो बात कहीं से कहीं पहुंचेगी और फिर तुम दुश्मनों की नजर में आ जाओगे। मामा, जो डरता है वो मरता है। हम तो खतरात से खेल ही रहे हैं, तो फिर डरना कैसा? मैं ये अमल करूंगा। मुझे मालूम होना चाहिए कि अनुषा कहाँ है। वो मुझसे कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी? वो जब मिलने ही वाली है तो फिर ठीक है। तुम तो इसे तलाश कर ही रहे हो। जरा सब्र से इंतजार करो और ये प्लानिंग करो कि वो मिलेगी तो किस तरह अपने काबू में करोगे। मैं ये सारी बातें सोच रहा हूँ, लेकिन इस नजूमी की इस बात ने मुझे चौंका दिया है और मेरे कानों में खतरे की घंटी बजा दी है कि उससे जब भी मुलाकात होगी तो वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उसने परेशान होकर पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? आखिरी मुलाकात क्यों होगी? इसका मतलब यही समझ में आता है कि हम मिलने के बाद हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। और बिछड़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे या अनुषा को मौत आ सकती है। मौत के बाद ही आइंदा कोई मिलने का सिलसिला नहीं रहेगा और इस तरह हमारी वो मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। बेटे, मेरे दिमाग में भी खतरे की घंटी बज रही है। हमारे देखते ही देखते कितने बड़े बड़े जादूगर हराम मौत मारे गए और उन्होंने कहा था कि इनके बाद अब हमारी बारी है। मैंने तुम्हें पहले भी यही समझाया था कि अनुषा का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं इसके असूल से बाज आऊंगा, तब भी जो होना है वो होकर रहेगा। नजूमी कह रहा था, मेरी बेहतरी और सलामती की एक ही सूरत है और वो ये कि मैं इस लड़की से सामना ना करूं, इससे कतरा कर निकल जाऊं। वो नजूमी बहुत अच्छा मशवरा दे रहा था, तुम्हें इस पर अमल करना चाहिए, उससे कतराने की कोशिश करते रहो। मैं इससे तब कतराऊंगा जब ये मालूम होगा कि वो कहाँ है। वो जहाँ होगी मैं वहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। हम काले जादू का तमाम सामान पीछे छोड़ आए हैं। हमने ये तय किया था कि कभी काला अमल नहीं करेंगे, लेकिन अब जरूरत महसूस हो रही है। हम जिसे तलाश करना चाहते थे उसे मकनातीसी आले के जरिए ढूंढ निकालते थे। काले मंत्रों के जरिए वो आला मुतहरिक होता था, फिर जहाँ हमारा शिकार होता था वो उसकी सिमत बताने लगता था। आप वो भी मास्को में छोड़ आई हैं। मैं इसीलिए काले मंत्रों के लिए ये तमाम सामान खरीद रहा हूँ। अब मैं अनुषा के नाम से बनाए हुए पुतले के जरिए मालूम कर सकता हूँ कि वो कहाँ है। मुझ खुर्दा लहजे में बोली, हमने कसम खाई थी कि अपनी सलामती के लिए काले जादू से परहेज करेंगे और जब तक मुकम्मल सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन नहीं होगा तब तक हम किसी भी तरह का काला अमल नहीं करेंगे। लेकिन अब मजबूरी है। मामा, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मैं समंदर के साहिल पर जाकर कहीं बहुत दूर जहाँ वीरानी होगी वहाँ किसी दरख्त के साए में बैठकर अनुषा के नाम का पुतला बनाऊंगा, फिर मखसूस मंत्रों का जाप करूंगा। ठीक है बेटे, तुम जब भी मंत्रों का जाप शुरू करो तो मुझे भी मुखातिब करो। मैं भी तुम्हारे साथ इन मंत्रों का जाप करूंगी। इस तरह हमारे अमल में शिद्दत पैदा होगी और हम जल्द से जल्द अनुषा का सुराग लगा सकेंगे। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई, फिर गुस्ल करने के लिए बाथरूम में चली गई। हमारी दुनिया में बहुत से लोग मासूम और बेगुनाह होते हैं। वो किसी से दुश्मनी नहीं करते, किसी की बुराई नहीं चाहते। इसके बावजूद शरपसंद अनासिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। इरनाकोफ और अवाज़ोन ऐसी कोशिशें कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुषा भी इबादत में मसरूफ थी। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद उसकी दादी आमना मामूल के मुताबिक उसके पास आ गई थी और उससे बातें कर रही थी। बेटी, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ लोग मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं अदावत से देते हैं। लिहाजा कभी किसी से खैर की तवक्को न रखो, लेकिन अपने अमाल को इस तरह बेहतर से बेहतर बनाओ कि दूसरे तुमसे खैर की तवक्को रखें। अनुषा ने पूछा, ऐसे वक्त जब दावत करने वाले हमें नुकसान पहुंचा रहे हों तो क्या हमें जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे वक्त भी इनके लिए खैर और सलामती की दुआएं मांगनी चाहिए? जब वो दावत का इरादा कर रहे हों तो इनके लिए खैर चाहो, उन्हें समझाओ। बुग़्ज़, हसद, कीना और दावत रखने वालों को समझाने और राह रास्त पर लाने के लिए कितने ही पैगंबर दुनिया में भेजे गए। जिन्हें राह रास्त पर आना होता है वो आ जाते हैं और जो नहीं आते वो अपने किए की सजा पाते हैं।
जब देखो कि नुकसान पहुंच रहा है और बचाव का कोई रास्ता नहीं है तो जवाबी कार्रवाई लाजमी हो जाती है। शरपसंद अनासिर को सजा देना लाजमी है। इस तरह दूसरे शरपसंदों को इबरत हासिल होती है। वो एक जरा तवक्कुफ से बोली, तुम कल से इस शहर में आई हो और तफरीह के लिए बाहर नहीं निकली। शाम को मामा अल्पा के साथ बाहर जाऊंगी। तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें साहिल समंदर के नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। यस ग्रैंड मामा, मैं यहाँ जोहू के साहिल पर हूँ। इस साहिल पर दूर तक तफरीह के लिए जाऊंगी। तुम्हारे ग्रैंड पापा इसी शहर में हैं, तुम्हारे साथ तफरीह कर सकते हैं। वहाँ तुम्हारे साथ उन्हें कोई नहीं पहचानेगा, कोई शुबा नहीं करेगा। ये आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं अभी ग्रैंड पापा से रब्ता करूंगी और उनसे जिद करूंगी कि वो मेरे पास आ जाएं। अब तुम इनसे रब्ता करो, मैं जा रही हूँ। वो अपनी पोती से रुखसत हो गई। वो ऐसी रूहानी कुव्वतें हासिल कर चुकी थी कि उसे पेश आने वाले वाक़यात का इल्म हो जाता था। वो जानती थी कि उसकी पोती से दावत रखने वाले अभी उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं। उसने अपनी पोती को ये बात नहीं बताई थी, सिर्फ ये मशवरा दिया था कि साहिल समंदर पर तफरीह करने के दौरान में मुझे अपने साथ रखना चाहिए। मामा, आप ग्रैंड पापा से बोलें कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अल्पा ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा, फिर मुझे मुखातिब किया। पापा, आपकी पोती याद कर रही है। मैं दूसरे ही लम्हे उसके पास पहुंच गया। जमाई लेते हुए बोला, दादा की जान, मुझे क्यों याद किया है? ओ ग्रैंड पापा, आप जमाई ले रहे हैं, इसका मतलब है सो रहे थे। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, मैं अभी बेदार हुआ था। अगर गहरी नींद में होता तब भी तुम्हारी आवाज़ सुनते ही हड़बड़ा कर उठ बैठता। मेरी नींद मेरा आराम, सुख, चैन और मेरी बाकी तमाम उम्र तुम पर कुर्बान होने के लिए है। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और इतनी दूर भी रहते हैं। यहाँ हमें सूरत शक्ल से कोई नहीं पहचानता है। अगर आप 2-4 घंटे मेरे साथ तफरीह करेंगे तो कोई दुश्मन हमें पहचान नहीं सकेगा और ना ही कोई हम पर शुबा कर सकेगा। अच्छा, तो तुम तफरीह के मूड में हो, वो भी मेरे साथ। ठीक है, मैं भी वॉशरूम जा रहा हूँ। गुस्ल वगैरह से फारिग होकर ठीक 1 घंटे के बाद तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। उनसे खुश होकर अल्पा से लिपट गई। कहने लगी, ग्रैंडपा आ रहे हैं, हम सब तफरीह के लिए निकलेंगे, खूब मज़ा आएगा। दोपहर के 3 बज रहे थे। स्वामी वरदान नींद से बेदार हो गया था। उसने गुस्ल करके फ्रेश होने के बाद ख्यालखानी की परवाज़ की। सबसे पहले इरनाकोफ के पास पहुंचा तो ज़रा चौंक गया। उसके ख्यालात पढ़ने लगा, फिर बोला, हे यू इरनाकोफ, ये तुम क्या कर रही हो? वो परिंदर इसकी आवाज़ सुनते ही एकदम से चौंक गई, सीधी होकर बैठ गई। हिचकिचाती हुई बोली, वो मैं कुछ काले मंत्रों का जाप कर रही हूँ। वो नागवारी से बोला, मुझे काले मंत्रों, काले जादू से नफरत है। मैंने सोचा था कि जब तुम्हें अपनी मामूला और ताबेदार बना लूंगा तब ये बात बताऊंगा, फिर तुम्हें कोई काला अमल नहीं करने दूंगा। इसने बड़ी ताबेदारी से कहा, जब तुम्हें ये पसंद नहीं है तो फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन आज कर लेने दो। क्यों करने दूं? तुम पर ऐसी क्या उफ्ताद आ पड़ी है कि तुम काले जादू का सहारा ले रही हो? तुम पर अगर कोई मुसीबत आई है या कोई खतरा महसूस कर रही हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो बड़ी मोहब्बत से बोली, अब तो तुम ही मेरे आका हो, मेरे जिस्म जान के मालिक हो। मैं जानती हूँ हमेशा तुम्हारे पास महफूज रहूंगी, लेकिन अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। क्या इस पर कोई मुसीबत आई है? आई नहीं है, आने वाली है। उसे अनुषे के बारे में बताने लगी, फिर बोली, हम माँ बेटा एक काले मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इस तरह हमें मालूम हो सकेगा कि अनुषे इस वक्त कहाँ है। वो जहाँ भी होगी मेरा बेटा उधर जाने से कतराएगा, बल्कि उसके मुखालिफ सिमत और दूर चला जाएगा, ताकि कभी उसे उस लड़की से सामना न हो। वरदान सोचने लगा, अवाज़ोन उसके लिए गैर ज़रूरी था और ये भी जानता था कि वो उसके बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखता है। उसे कभी मौका मिलेगा तो वो अपनी माँ को इसके चुंगल से छुड़ाने के लिए उसका दुश्मन बन जाएगा। इरनाकोफ ने पूछा, क्या तुम अपनी गैर मामूली सलाहियतों के जरिए उस लड़की का सुराग लगा सकते हो? मैं उसका सुराग लगा सकता हूँ, लेकिन बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या मेरी खातिर मेरे बेटे के लिए वक्त नहीं निकालोगे? इस तरह वक्त निकाल सकता हूँ कि वो मेरे पास चला आए, मैं उसे तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। फिर वो लड़की अनुषे तो क्या, इसका दादा फरहाद अली तैमूर भी तुम्हारे बेटे तक नहीं पहुँच सकेगा। क्या भी मेरे बेटे को अपने पास बुला सकते हो? ऐसा है तो मैं भी उसके साथ तुम्हारे पास आऊँगी। मैंने कहा ना, मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ, किसी को अपने करीब नहीं बुला सकता। तुम्हारे बेटे को एक ऐसी जगह बुलाकर पनाह दूंगा जहाँ इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि काले जादू से बाज आ जाओ, ये मंत्र पढ़ना छोड़ दो। अपने बेटे से भी कहो कि वो ऐसे मंत्र ना पढ़े। वो भी जहाँ भी है वहाँ से उठकर बांद्रा हिल की तरफ जाए। मैं उसे गाइड करूँगा कि किस बंगले में जाकर पनाह लेनी है। इरनाकोफ ने इसी वक्त अपने बेटे को मुखातिब किया, ये मंत्र पढ़ना छोड़ दो। अभी अवाज़ोन ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें एक पनाहगाह तक पहुँचाएगा जहाँ अनुशे तो क्या, कोई भी दुश्मन तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। वो नागवारी से बोला, मामा आप उसकी ताबेदार बन गई हैं, इसलिए ताबेदारी करें, लेकिन मुझे मजबूर ना करें। मंत्र पढ़ने के दौरान में मुदाखलत ना करें। मुझे यकीन है कि मैं मुसलसल 2 घंटे तक जाप करते रहने के बाद उसका सुराग जरूर लगा लूंगा। देखो बेटे, माँ की बात मान लो,
यहाँ से उठो और बांद्रा हिल की तरफ जाओ, तुम्हें पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। मामा, ये आप नहीं बल्कि आपके मुंह से अवाज़ोन की ज़ुबान बोल रही है। आपका दिमाग आपके काबू में नहीं है, उसके काबू में है। मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ से चले जाएं, वरना मैं सांस रोक कर भगा दूंगा। वो जवाबन कुछ कहना चाहती थी, मगर बेटे ने फौरन सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। वरदान ने कहा, किस खरदमाग बेटे के लिए परेशान हो रही हो? वो सिर्फ बदतमीज ही नहीं है बल्कि मेरा दुश्मन भी है। फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसकी हिफाजत करूंगा। तुम बार बार इसके दिमाग में ना जाओ, ये मेरा हुक्म है। उसी हुक्म की तामील करना पड़ी। होटल के कमरे में वो जहाँ बैठी थी वहीं खामोशी से बैठी रह गई। अवाज़ोन अपनी जगह मंतर पढ़ रहा था। वरदान खामोशी से उसके अंदर पहुंच गया। ठहर ठहर कर उसकी जुबान में लग़्ज़िश पैदा करने लगा। वो पढ़ते पढ़ते रुक रहा था, कभी भूल रहा था, कभी याद कर रहा था, परेशान हो रहा था। फिर उसने खला में तकते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ वरदान, तुम मेरे अंदर पहुंचे हुए हो। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस क्यों नहीं कर रहा। वो जवाबन खामोश रहा, चुपचाप रुकावटें पैदा करता रहा। अवाज़ोन समझ गया कि अब वो आगे मंतर नहीं पढ़ सकेगा। वो वहां से उठकर जाने लगा। वो आबाद सारी इलाकों से 10 किलोमीटर दूर एक वीराने में था, ताकि तन्हाई और खामोशी में मंत्रों का जाप कर सके। उठकर जाते हुए ये समझ गया था कि अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। दुश्मन इसके दिमाग पर छाया हुआ है, उसे जबरन वहां से ले जा रहा है। वरदान अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता था। उसने सोच लिया था कि उसे वहां से ले जाएगा, फिर शहर से लेकर ट्रैफिक के हजूम से गुजारते हुए ऐसे हादसे से दो चार करेगा कि फिर वो एक के बाद दूसरी सांस नहीं ले सकेगा। वो 2 किलोमीटर पैदल चलता हुआ एक साहिली इलाके में पहुंचा। उसने एक गैराज में अपनी रेंटेड कार खड़ी की थी और वहां तक पहुंचने के लिए उसे अभी 6 किलोमीटर तक चलना था। वो मंत्र पढ़ने में नाकाम रहा था। फिर इसके दिमाग पर यह बोझ था कि वो वरदान के ज़ेरे असर है। उसके अंदर दिमागी थकन भी थी और जिस्मानी थकन भी। वो एक जगह थक कर बैठ गया। ऐसे ही वक्त मैं कार ड्राइव करता हुआ उधर पहुंचा। अनुषा साथ वाली सीट पर बैठी थी और अल्पा पिछली सीट पर थी। मैंने एक जगह कार रोक कर कहा, लो बेटी, तुम्हारी फरमाइश पर यहाँ तक चला आया हूँ, अब आगे वीरान साहिल है। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। दूर तक देखकर बोली, यहाँ कितनी खामोशी और वीरानी है। शहर के हंगामों से दूर यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है। अवाज़ोन दूर बैठा हुआ था। हमारी कार देखकर अपनी जगह से उठ गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आकर मुझसे बोला, मिस्टर, आगे एक वादी में मेरी कार खड़ी हुई है, क्या तुम मुझे लिफ्ट देना पसंद करोगे? मैं खुश दिली से बोला, बेशक, ये मेरी पोती है, यहाँ के नज़ारे कर रही है। हम थोड़ी देर के बाद यहाँ से चलेंगे तो तुम्हें भी ले चलेंगे। अनुषा गुमसुम सी खड़ी हुई थी, अवाज़ोन को तक रही थी। जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि उसमें इस हद तक रूहानियत बेदार हो गई थी कि वो अपने आसपास शर्मसंदों और शैतानी इरादे रखने वालों को महसूस कर लेती थी। उसने सर घुमाकर अल्पा की तरफ देखा, फिर एक उंगली अपने सर पर रखी। अल्पा फौरन ही उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, क्या बात है मेरी जान? मामा, ये जो आदमी है इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। अल्पा ने फौरन ही मुझे मुखातिब किया, पापा, अनुषा इस आदमी के आते ही खतरा महसूस कर रही है, क्या उसके ख्यालात पढ़ूं? अल्पा बहुत ही गलत वक्त पर मेरे अंदर आई थी, क्योंकि इस वक्त वरदान अवाज़ोन के जरिए मेरी आवाज़ सुनने के बाद मेरे अंदर आ गया था। खामोशी से मेरे ख्यालात पढ़ रहा था। उसे तो यही मालूम होना था कि मैं धर्मवीर हूँ और शांताबाई अस्पताल का मुंतज़म आला हूँ, लेकिन उसने अल्पा की ये बात सुन ली कि अनुषा खतरा महसूस कर रही है। अल्पा ने यह भी कहा कि क्या मैं सामने वाले के ख्यालात पढ़ूं? इसका मतलब यही था कि हम सब टेलीपैथी जानते हैं और हमारे साथ जो 7 वर्ष की लड़की मौजूद है उसका नाम अनुषा है। वरदान को इरनाकूफ के जरिए अनुषा के बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका था। उस नजूमी के बारे में भी मालूम हुआ था जिसने ये पेशगोई की थी कि अनुषा से अवाज़ोन का सामना जल्दी होने वाला है। अब वो अवाज़ोन के अंदर रहकर देख रहा था कि इन दोनों का सामना हो चुका है। इस वक्त ये मैं नहीं जानता था कि वरदान मेरे ख्यालात पढ़ रहा है। बस इतना मालूम था कि कोई मेरे अंदर है। मैंने अवाज़ोन पर शुबा किया, फिर उससे पूछा, अच्छा तो तुम टेलीपैथी जानते हो? इसने चौंक कर मुझे देखा, फिर इनकार में सारी लाया। मैंने गूंसा इसके मुंह पर रसीद किया। वो लुढ़खड़ा कर पीछे गया। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। अगरचे वो हट्टा-कट्टा जवान था और मैं इसके मुकाबले में बूढ़ा था, इसके बावजूद मेरे पास दुश्मन से निपटने के खतरनाक तजर्बात थे। इसने पलटकर मुझ पर हमला किया। मैंने इसके हमले को रोका, फिर जवाबी हमला किया। इस तरह जवानी और बुढ़ापे के दरमियान ठन गई। हमारे दरमियान खासी देर तक जंग जारी रही, लेकिन मार खाने के दौरान दिमाग कुछ कमजोर हो जाता है। ऐसे ही वक्त अल्पा ने उसके अंदर जलजिला पैदा किया तो वो लड़ना भूल गया, चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ा। अल्पा ने फिर एक बार जलजिला पैदा किया। इस बार तकलीफ की शिद्दत ऐसी थी कि उसके हलक से चीख भी ना निकल सकी। वो खामोशी से माही बेआब की तरह तड़पने लगा। हमने इसके मुख्तसर से ख्यालात पढ़े तो ये मालूम करके हैरान रह गए कि वो अवाज़ोन है जो एक अरसे से मेरी पोती को हासिल करने की जदोजहद में मसरूफ रहा है। कमबख्त मेरी पोती से शादी करने के ख्वाब देख रहा था।
وہ دماغی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری تو وہ دوسری طرف پلٹ کر پھر زمین پر گر پڑا۔ اس بار میں نے اس کے اندر زلزلہ پیدا کیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ تکلیف کی شدت سے نہ چیخ سکتا تھا، نہ تڑپنے کی طاقت رہ گئی تھی، بس وہ ایک ذرا سا لرز کر رہ گیا۔ میں نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا، اس کا دماغ بجھ رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ کے لیے بجھ جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے آخری بار زلزلہ پیدا کیا، آخری بار اس کے جسم میں لرزش ہوئی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ میں نے اپنی پوتی کے پاس آ کر اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، ایک اور کالا جادو جاننے والا جہنم رسید ہو گیا ہے۔ تقدیر اسے جہنم میں پہنچانے کے لیے ہی ہمیں یہاں لائی تھی، آؤ چلیں۔ انوشی نے ایک دم چونک کر مجھے دیکھا تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ گرینڈ پا ابھی کوئی میرے دماغ میں آیا تھا، سانس روکتے ہی چلا گیا۔